Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 32. Today's topic is about the derivative mishaps and what we can learn from them. Up till now students हमने पूरा derivative का ये course किया and you have studied many different successes and also the failures of the derivative securities in different parts of the world and in different types of financial institutions and even in the non-financial institutions. आज का जो lecture है आज हम conclude करने जा रहे हैं about all the different types of losses and about all the different types of lessons that we have learned out of the usage of these derivatives in different sectors. It includes both financial, non-financial companies and even the general जो आपके users हैं उनके लिए. So going back to the old stories of Nick Leeson movie आपने देखी and you have really enjoyed that movie और आपने उसमें देखा कि किस तरह से Nick Leeson को बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं और बेरिंग्स बैंक जो है वो एक एम्प्लॉय के फॉल्ट की वजह से, एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से इट हैज गॉन बैंकरप्ट एंड इट वाज सच अ ह्यूज एस्टेब्लिशमेंट. 200 years old बैंक था जो कि विच वेंट बैंकरप्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ निक लेसन एंड बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू हैंडल दैट. उसने हेजर की बजाय उसने स्पेकुलेशन की पोजीशन लेने की कोशिश की. और स्टूडेंट्स हमने बहुत डिटेल से व्हाइल यू वर वाचिंग मूवी मैंने आपको हर स्टेप पे बताया था कि इसने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं एंड व्हाट आर दोज लेसन्स फॉर देम. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो टू द जनरल पब्लिक दैट what are the different questions, the word of question that should be taken into account while you are using derivative securities for your businesses. So the losses should not be viewed as the indictment of the whole derivative industry. The derivative market is a vast multi-trillion dollar market that by most measures have been outstandingly successful and serve the needs of its users as well. तो इस चीज को हम गलत मत समझें मतलब और आप ये ना समझें कि डेरिवेटिव यूज करने से हमेशा नुकसान ही होता है. जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, they can be used as a far for long success stories. They can be converted into success stories provided के यूजर को पता हो कि आपने उसको किस तरह से अडॉप्ट करना है और किस तरह से आपने उसको यूज करना. So nevertheless it is worth considering carefully the lessons we learn from them. That is what we will do in this final chapter or in this final lecture number 32 में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ. So the lessons for all users of derivatives irrespective के वो आपके फाइनेंशियल थे या नॉन फाइनेंशियल थे, the lessons for all users of derivatives, the first lesson is that you should define the risk limits. It is essential that all companies defines a clear and unambiguous way limits to financial risks that can be taken. बहुत clear unambiguous risk limits identify कर लें कि beyond this you are not going to go further. आप इससे आगे कहीं नहीं जाएंगे, आप इन रिस्क लिमिट्स में रह के एक्सरसाइज करेंगे. They should then set up procedures for ensuring that the limits are obeyed. अच्छा सिर्फ ये नहीं कि लिमिट सेट कर दी और वो फिर भूल गए, बल्कि ऑल्सो के लिमिट सेट करने के बाद they are going to see that whether they are working in those limits or not, or whether those limits are being properly obeyed or not. क्या वो लिमिट्स वाकई ओबे हो रही हैं या नहीं हो रही. Ideally, overall risk limits should be set at broad level. ताकि हम उनको एक आप ये समझ लें कि हम उनको एक फ्री हैंड या फ्लेक्सिबल रिस्क लिमिट्स देंगे ताकि उसके दरमियान में एक्सरसाइज कर लें. बट दोज एक्सरसाइज लिमिट्स शुड बी द रियलिस्टिक वन. ठीक है ना. These should be converted to the limits applicable to the individual responsible for managing particular risk. Daily reports should indicate the gains or losses that will experienced for particular movement in the market variables. अच्छा, ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स आपने लिमिट सेट की और ये भी चेक करना है कि प्रॉपरली ओबे हो रही हैं और ये भी देखना है कि प्रॉपर गेन्स और लॉसेस जो हैं वो कितने कितने हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं. ठीक है. Then it is particularly important that companies monitor risks carefully when derivatives are used.
कि कंपनीज को ये चाहिए कि वो रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करें। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि मैंने आपको एक लेसन दिया था एक लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको वार पढ़ाया था, दैट इज वैल्यू एट रिस्क, द प्रोबेबिलिटी, द मोस्ट प्रोबेबल लॉस। द कंपनीज, आजकल तो सभी कंपनीज के ऊपर ये आप समझ लें कंडीशन है दैट दे शुड नो दैट व्हाट शुड दे बी देयर वार। और वार के मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स बताए, बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स बताई विच शुड बी अप्लाइड, जो कि आप अप्लाई करेंगे और आपको अप्लाई करनी चाहिए, सो दैट इट इज अ कंडीशन कि आपने वार को देखना है कि वार अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर या नहीं हो रहा। Derivatives can be used for hedging, speculation and arbitrage. Without close monitoring, it is impossible to know whether our derivatives trader has switched from being a hedger to a speculator or switched from being an arbitrator or to the speculator. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने रिस्क लिमिट्स डिफाइन कर दी। ऑल्सो द रोल ऑफ द इंडिविजुअल दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड। रोल से मतलब यह है कि क्या वो हेजर के तौर पे काम कर रहा है, या क्या वो स्पेकुलेशन कर रहा है, या क्या वो आर्बिट्राज है। ऐसा ना हो कि वो हेजिंग करते करते कहीं स्पेकुलेशन में कन्वर्ट हो जाए, या स्पेकुलेट करते करते कहीं वो आर्बिट्राज की तरफ चला जाए। तो जब भी ऐसा होगा, जैसा कि निकलेसन इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन, कि जब भी उसने अपना रोल चेंज कर लिया, फॉर इंस्टेड ऑफ हेजिंग ही स्टार्टेड टू स्पेकुलेट, उसने स्पेकुलेशन शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसको ये वाला सारा लॉस हुआ। So bearings is the classic example of what can go wrong. Nicholson mandate was to carry out risk arbitrage between the Singapore and the Osaka market on Nike 225 futures. तो उसका काम था कि वो लो रिस्क आर्बिट्राज करना चाहता था दो एक्सचेंजेस के दरमियान में, दैट इज सिंगापुर एंड ओसाका के दरमियान। अननोन टू दिस सुपीरियर्स इन लंदन, लेसन स्विच फ्रॉम बीइंग एन आर्बिट्राजर to taking huge bets on the future direction of the Nike 225 system. मतलब instead of taking the advantage of the arbitrage between Singapore and Osaka markets, he went on to take the big positions और huge bets उसने लगानी शुरू की, जिसकी वजह से system within bearings were so inadequate that nobody knew what he was doing. Basically जो bearings बैंक का हेड ऑफिस था लंदन में, उनके ऊपर भी ये एक आप समझ लें कि ये उनके ऊपर एक इल्जाम था, या उनके ऊपर एक एलिगेशन थी कि they were not able to see it properly that what was going wrong. So that was the reason that it went collapsed or it collapsed, क्योंकि एक तो हेड ऑफिस की भी कोई उसके ऊपर नजर नहीं थी कि what they were doing, और सेकेंडली ये कि जितनी भी चीजें उससे पहले हो रही थी मार्केट में, जो दो मार्केट्स के दरमियान में उन्होंने अपने आर्बिट्राज करनी थी, बट दे एंडेड अप इनटू डूइंग द हेजिंग्स. So this was basically the reason. What we are arguing is the sizes of the position that can be taken should be limited and the systems in place should accurately report the risk being taken. ना सिर्फ ये बल्कि also कि जो पोजीशंस ली जा रही थी उनकी भी लिमिट्स आइडेंटिफाई होनी चाहिए थी कि उनकी पोजीशंस की, अब जैसे नाइकी वाले केस में या निकलेसन वाले केस में कोई पोजीशन सेट नहीं थी और ना ही कहीं रिपोर्ट हो रहा था कि उसने कितना रिस्क लिया. सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग ए पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम वेल इन प्लेस्ड होना चाहिए, जहां पे जितना आपने रिस्क लिया है दैट शुड ऑटोमेटिकली बी रिपोर्टेड एंड, और उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ आप उससे ज्यादा ले नहीं सकते. कोई इस तरह का सिस्टम वेल इन प्लेस्ड होना चाहिए कि आप उससे ज्यादा रिस्क ना ले सकें. सो दिस इज बेसिकली दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. देन इज टेक द रिस्क लिमिट सीरियसली. आप सिर्फ ये नहीं कि रिस्क डिफाइन कर दिया, बल्कि ऑल्सो कि यू शुड टेक दोज रिस्क लिमिट्स सीरियसली. कैसे? व्हाट हैपेंस इफ एन इंडिविजुअल एक्सीड्स रिस्क लिमिट्स एंड मेक अ प्रॉफिट. वैसे देखने में तो आपको बड़ा साउंड लग रहा है, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी रिस्क लिमिट्स को एक्सीड भी कर देता है टू मेक अ प्रॉफिट, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अपेरेंटली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट this tricky position can lead you to the losses, to those huge losses which cannot be repaired back. ठीक है ना? इतने huge losses इससे हो सकते हैं जो कि दोबारा से आप उनको कभी भी कंपोज नहीं कर पाएंगे. This is a tricky issue for the senior management. It is tempting to ignore violations of the risk limits when profit results. However, it is short-sighted. It leads to a culture where risk limits are not taken seriously.
अच्छा, देखने में तो ये इतनी कोई गलत बात नहीं लग रही है। अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं एक्सेसिव रिस्क लिमिट्स लेने से, तो आपका क्या जाता है, आप ले लें और प्रॉफिट्स जनरेट करें। लेकिन होता यह है कि अगर इस तरह की प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशंस में होनी शुरू हो जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाता है। फिर जब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाएगा तो सभी लोग जो है उसको ऑलरेडी इस तरह की पोजीशंस लेने में कोई झिझक महसूस नहीं करेंगे या कोई आर नहीं होगा उनको होगा कि यस दैट हैज ऑलरेडी बीन डन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। So it leads to the culture where the risk limits are not taken seriously and it paves the way for a disaster, और जिसकी वजह से disaster हो सकता है। In many situations जो कि companies they have become complacent about the risk they were taking because they had taken similar risk in the previous years and made profit. Like उन्होंने कुछ companies की ऐसी examples हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में कोट करूंगी कि उन्होंने previous years में भी इसी तरह से रिस्क लिए थे and at that time it went wonderful, और उन्होंने ये सोचा कि चलो अभी भी ले लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने दोबारा उसको उन्हीं रिस्क को लेने की कोशिश की तो it went all disaster. Okay, the classic example here is the Orange County Robert Citron activities in 1991 to 1993. They had been very profitable for Orange County and the municipality had come to rely on his trading for additional funding. People chose to ignore the risk he was taking because he had produced profits. तो लोगों ने उसको इग्नोर करना शुरू किया इस चीज को, क्योंकि वो पास्ट में भी उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि वो से पहले भी बहुत सारे दफा बहुत ज्यादा रिस्क ले चुका था एंड ही हैज मेड द अबंडेंट प्रॉफिट्स इन दैट। लेकिन हमेशा तो चीजें एक जैसी नहीं होती। अब इस दफा ये हुआ कि चीजें उसके फेवर में नहीं थी, या जब उसने हाई रिस्क लिए तो हाई रिटर्न्स उसको नहीं मिल सके। अनफॉर्चुनेटली द लॉसेस मेड इन 1994 far exceeded the profits from the previous year, और 1994 में इतना बिग कोलैप्स हुआ और इतना ज्यादा उनको लॉस हुआ कि जो कि पिछले कई सालों का जो प्रॉफिट था वो उससे भी कहीं ज्यादा था। So the penalties for exceeding risk limits should be just as great when the profits result as when losses result. तो रिस्क लिमिट्स की जो अगर कोई एक्सेस में ले रहा है तो देयर मस्ट बी पेनल्टीज, अदरवाइज ट्रेडर्स हु मेक लॉसेस आर liable to keep increasing their bets in the hope that eventually make a profit will result and will be forgiven. मतलब वरना हमेशा ये होगा कि लोग यही समझते रहेंगे कि क्या हुआ, हमें प्रॉफिट्स हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली एवरीबडी इज गोइंग टू फॉरगेट अबाउट दैट। तो अगर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो देन इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट सिचुएशन। ओके, डोंट एज्यूम यू कैन आउट गेस द मार्केट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि कभी भी आप ये एज्यूम मत करें कि आप आउट गेस कर सकते हैं मार्केट को, या आप मार्केट की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। सम ट्रेडर्स आर क्वाइट पॉसिबली बेटर देन अदर्स। कुछ ट्रेडर्स दूसरों से बेहतर होते हैं, बट नो ट्रेडर गेट इट राइट ऑल द टाइम। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर ट्रेडर जो है वो हर वक्त ही उस चीज को ठीक ही रखे। A trader who corrects predicts the direction in which market variables will move 60% of the time is doing well. If a trader has an outstanding track record, as of Robert Citron did in early 1990s, it is likely to be a result of luck rather than the superior trading skill. तो स्टूडेंट्स अगर कोई ट्रेडर मार्केट को बहुत जबरदस्त गेस करता है तो आप कभी भी ये मत समझें कि दैट इज बिकॉज ऑफ हिज और हर ट्रेडिंग स्किल्स, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ हिज और हर लक। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लेसन्स या मिसहैप्स के बाद जो रिपोर्ट किया गया वो ये है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनको कामयाबी हुई, लोग यही कहते हैं कि इट इज नॉट ऑलवेज द बेस्टेस्ट ऑफ स्किल्स दैट दे हैड अप्लाइड, या ये नहीं था कि उन्होंने एक्सपर्ट स्किल्स यूज की इस वजह से ऐसा हुआ, बल्कि इस वजह से ऐसा हुआ बिकॉज दे वर लकी इनफ टू गेट द जॉब डन और टू गेस द मार्केट in the right direction or their prediction was overly right or overly correct. तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि प्रोडिक्शन जो है वो हमेशा ही 100% ठीक हो। कई दफा ट्रेडिंग ठीक नहीं होगी आपकी, लेकिन लक का फैक्टर यहाँ पे ज्यादा काउंट करता है, जो कि रिपोर्ट किया गया। सपोज दैट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज 16 ट्रेडर्स एंड वन ऑफ दोज ट्रेडर्स मेक्स प्रॉफिट इन एवरी क्वार्टर ऑफ ईयर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एक हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
उसके पास 16 ट्रेडर्स हैं, उन 16 ट्रेडर में से एंड वन ऑफ दोज ट्रेडर्स मेक्स प्रॉफिट इन एवरी क्वार्टर ऑफ ईयर, और उनमें से एक जो ट्रेडर है वो हर क्वार्टर हर ईयर के एक क्वार्टर में वो जरूर प्रॉफिट जनरेट करता है. शुड द ट्रेडर रिसीव अ गुड बोनस? Should the trader's risk limit be increased? The answer to the first question is that inevitably the trader will receive a good bonus. Definitely he must receive a good bonus for showing his good performance. जाहिर है उसने अच्छा काम किया तो उसको बोनस तो मिलना चाहिए. लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुड वी इंक्रीज द ट्रेडर्स रिस्क लिमिट्स, क्या हम उसकी रिस्क लिमिट को इंक्रीज कर दें? द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन शुड बी नो. हम क्यों उसकी इंक्रीज करें? पहली दफा में अगर उसने प्रॉफिट जनरेट किया, हमने उसको बोनस दे दिया ना, इनफ था. लेकिन हम उसकी रिस्क लिमिट्स को इंक्रीज नहीं करेंगे. वो इसलिए नहीं करेंगे कि रिस्क लिमिट्स को इंक्रीज करने से, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले बताया कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर डेवलप हो जाएगा दैट एवरीबॉडी इज गोइंग टू टेक द लार्जर अमाउंट ऑफ रिस्क. और जब ज्यादा हर कोई ज्यादा लेने की कोशिश करेगा तो इट इज गोइंग टू पेव द वे फॉर द disaster. So one should keep this thing in mind. The chance of making a profit in 4 consecutive quarters from trading room is 0.5 into 4 or 1 in 16. This means that just by chance one of the 16 traders will get it right or every single quarter of the year. यानी हर 16 में से एक जो आपका ट्रेडर होगा वो उसको ठीक साबित कर सकता है. हर 16 में से एक ट्रेडर जरूर आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा. ये एक स्टैटिस्टिक्स है. We should not assume that the traders luck will continue and we should increase the traders risk limit. और हमें ये assume नहीं करना चाहिए कि ट्रेडर की जो लक है वो हमेशा ऐसी रहेगी और हम उसकी रिस्क लिमिट्स को इंक्रीज कर दें. तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि वी शुड नॉट बी wholly solely rely on the luck of that trader, क्योंकि रिस्क लिमिट्स को बढ़ाने से मतलब यह है कि अगेन वी आर टेकिंग ऑल आर जो हमारे पास जो स्टेक्स हैं वो हम रिस्क पे लगा देंगे. ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. डोंट अंडर एस्टिमेट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना. वाई? When a trader appears good at predicting a particular market variable, there is a tendency to increase the trader's limit. जब कोई ट्रेडर अच्छा प्रिडिक्ट करे किसी मार्केट वेरिएबल को तो टेंडेंसी यही होती है कि हम उसकी रिस्क लिमिट को इंक्रीज कर दें. वी हैव जस्ट आर्ग्यूड दैट इट इज अ बैड आइडिया बिकॉज इट इज क्वाइट लाइकली दैट द ट्रेडर हैज बीन लकी रादर देन क्लेवर. तो हो सकता है कि ट्रेडर जो है वो लकी हो रादर देन बीइंग क्लेवर. However, let us suppose that we are really convinced that the trader has special talent. अगर हम ये सपोज कर लें, अगर हम ये ज्यूम कर लें कि वाकई ही ऐसा है कि ट्रेडर की कोई खास किस्म की लक है, उसके कोई स्पेशल टैलेंट्स हैं. However, how undiversified should we allow ourselves to become in order to take advantage of the trader's special skill? ट्रेडर जितना भी स्पेशलाइज्ड स्किल का क्यों ना हो, हम विदाउट हैविंग टेकन द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हम उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे. उसकी रीजन ये है कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज नेवर गोइंग टू बी द सेम एज कम्पेयर टू अगर हमने फुली डाइवर्सिफाई किया हुआ है. तो डाइवर्सिफिकेशन को तो हमने अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं है, या हम ये समझ लें कि डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स को तो हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, हम डाइवर्सिफिकेशन को नहीं छोड़ सकते. Okay, an example over here will illustrate this point, and let me write down this example for you. Suppose that there are 20 stocks. Each of which have an expected return of 10% per annum and a standard deviation of returns
returns of 30%. The correlation between the returns from any two of the stocks is by dividing an investment equally among 20 stocks an investor has an expected return of 10% per annum and standard deviation of returns of and returns of 14.7%. Diversification. So suppose that there are 20 stocks and each of which have an expected return of 10% per annum and the standard deviation of returns of 30%. The correlation between the returns from any of the two stocks is 0.2. By dividing an investment equally among 20 stocks, an investor has an expected return of 10% per annum and the standard deviation of the returns of 14.7%. तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 30% है और अगर हम उसको डाइवर्सिफिकेशन करें तो आप देख लें कि वो हाफ से भी कम रह जाती है, दैट इज 14.7. डाइवर्सिफिकेशन enables the investor to reduce risk by over half. जैसा कि आप देख रहे हैं 30 का हाफ 15 बनता है और 15 से भी ये लेस है, दैट इज 14.7. Another way of expressing is that the diversification enables an investor to double the expected return per unit of risk taken. यानी अगर आप इसको दूसरे लफ्जों में ये कहें कि डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न डबल हो जाता है, यानी रिस्क हाफ हो जाता है, हाफ से भी लेस हो जाता है. तो हमने रिस्क और रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशनशिप रखा हुआ है कि जितना रिस्क होगा उतना ही रिटर्न है. तो अगर आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस करें कि डाइवर्सिफिकेशन enables an investor to double the expected return per unit of risk taken. The investor would have to extremely good at the stock picking to get a better risk return trade off by investing in just one stock. तो अगर वो सिर्फ एक उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है तो बहुत रिस्की है, लेकिन अगर वो ज्यादा में इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली दे इज गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑल द वे. नेक्स्ट पॉइंट इज कैरी आउट सिनेरियो एनालिसिस एंड स्ट्रेस टेस्ट. सो स्टूडेंट, जब सिनेरियो एनालिसिस की बात आती है तो आपके ज़हन में फौरन वार का लफ्ज आ रहा होगा. और वार में स्टूडेंट्स मैंने आपको बड़ा ही डिटेल से बताया था कि वार हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से वार को कैलकुलेट करने के सो मेनी डिफरेंट मैंने आपको मेथड्स बताए थे और फिर उन सारे मेथड्स के प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपसे शेयर किए थे. लेकिन क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये था कि वार शुड बी कैलकुलेटेड. वार को हमने कैलकुलेट जरूर करना है. द कैलकुलेशन ऑफ द रिस्क मेजर सच एज वार शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय सिनेरियो एनालिसिस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग to obtain an understanding of what can go wrong. They are very important. Human beings have an unfortunate tendency to anchor on one or two scenarios when evaluating decisions. अच्छा, ह्यूमन बींग्स की एक अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी है और वो ये है कि दे एंकर ऑन वन और टू सिनेरियोज व्हेन इवैल्यूएटिंग अ डिसीजन. वो एक या दो उसके ऊपर ना सिनेरियोज पे ज्यादा आप ये समझ लें कि भरोसा करेंगे या उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेंगे while evaluating their decisions.
In 1993 and 1994, for example, Procter and Gamble and Gibson Greetings were so convinced that interest rate would remain low and they ignored the possibility of a 100 basis point increase in their decision making. मतलब कई दफा ये होता है ना कि एक मिसकंसेप्शन सी आ जाती है, दिमाग में एक चीज आ जाती है, कहते हैं बस वो दिमाग में एक चीज आ गई, बस उसी के पीछे. तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड गिब्सन ग्रीटिंग्स के साथ भी यही हुआ 1993 और 1994 में. दे वर सो कन्विंस्ड के इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो लो रहेंगे, लेकिन वो एकदम से बढ़ गए. तो बिजनेसमैन को या इन्वेस्टर को बहुत रैशनल होना चाहिए, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए उसकी अप्रोच के, या आप ये समझ लें कि सिक्स सेंस पे ज्यादा आपने रिलाई नहीं करना फॉर बीइंग एन इन्वेस्टर, एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन दी स्टॉक मार्केट, और उन सब चीजों को देखते हुए आपको ये बहुत ज्यादा देखना है. इट इज इम्पोर्टेंट टू बी क्रिएटिव इन द वे सिनेरियोज आर जनरेटेड. वन अप्रोच इज टू लुक एट 10 or 20 years of the data and choose the most extreme event as scenarios. अच्छा, सिनेरियो टेस्टिंग से मतलब ये कि आप हिस्ट्री निकाल लें 10 to 20 years बैक चले जाएं और उसमें देखें कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ डिड इट गो रॉन्ग, किस तरह से हुआ. Sometimes there is a shortage of data on a key variable. It is then sensible to choose a similar variable for which much more data is available. अगर कभी ऐसा हो ना कि आपको डाटा की जरूरत है, तो एग्जैक्ट जो वेरिएबल है या एग्जैक्ट जो आप समझ लें जिस चीज का आपको डाटा चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप ऑल्टरनेट कोई उसकी प्रॉक्सी ढूंढ लें. प्रॉक्सी से मतलब है कि इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल जो उससे कनेक्टेड चीज है आप वो देख लें, तो देन यू विल गेट एन आइडिया कि इस सिनेरियो में क्या होगा. So it is then sensible to choose a similar variable for which much more data is available and use historical daily percentage changes in that variable as a proxy for possible daily percentage changes in the key variable. यानी जो proxy में changes आ रही हैं या proxy variable में जो changes हैं वही changes आप समझ लें कि key variable में भी होंगी, क्योंकि आपने proxy जो है वो key variable के against दी हुई है. For example, if there is a little data on the price of bond issued by a particular country, we can look at the historical data on the price of bond issued by other similar countries to develop possible scenario. जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें कि अगर किसी कंट्री का हम बॉन्ड प्राइसेस का डाटा लेना चाहते हैं, लेकिन वहां पे हमें ऐसा कोई डाटा मिल नहीं रहा, तो हम उसी तरह की कंट्री या उसी किस्म की एक कंट्री, मतलब उसी किस्म से मतलब ये कि उसी कॉन्टिनेंट में हो और उसकी इकोनॉमी भी उसी किस्म की हो, तो वी कैन टेक दैट डाटा, जिसको हम एक ग्रुप में रखते होंगे. हाँ जी, हम इन कंट्रीज को समझते हैं कि इनकी इकोनॉमी एक जैसी है, तो हम उनको एक एज अ प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हमें इंडोनेशिया के किसी वेरिएबल की क्या चाहिए डाटा और हमें नहीं मिल रहा, तो हम उसको मलेशिया से या सिंगापुर से या थाईलैंड से, जो उसी एरिया में सब कॉन्टिनेंट में जो करीब मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी मोर और लेस उन जैसी है, एग्जैक्टली नहीं हो सकती लेकिन टू सम एक्सटेंट दे आर फॉलोइंग द सिमिलर पैटर्न, वी कैन टेक देम एज अ प्रॉक्सी. सो दिस इज अबाउट द लेसन्स फॉर द जनरल यूजर्स जो मैंने आपके सामने अभी भी पेश किए. होप आपने इनको एंजॉय किया. लेसन्स फॉर ऑल द यूजर्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इररिस्पेक्टिव के वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या वो क्या है. मैं रिपीट करती हूँ वो क्या क्या थे. नंबर 1 इज डिफाइन रिस्क लिमिट्स. रिस्क लिमिट्स को आपने डिफाइन करना है सो दैट द इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू एक्सरसाइज बिटवीन दोज लिमिट्स. टेक द रिस्क लिमिट्स सीरियसली, दैट nobody is going to cross those limits and everybody is obeying that. Do not assume that you can outguess the market. कभी भी ये assume ना करें कि आप जो है ना वो बहुत आउट क्लास किस्म का प्रिडिक्शन कर सकते हैं and you can outguess the market. It cannot happen. Do not underestimate the benefit of diversification. Diversification के benefits को आपने underestimate नहीं करना, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से आपको आप ये समझ लें कि आपका रिस्क हाफ हो जाता है, इवन मोर देन हाफ से भी ज्यादा कम आपका होता है रिस्क. लाइक अगर 30% रिस्क है तो डाइवर्सिफिकेशन करने से आपका 14.7% पे रिस्क चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है ना. और आप अगर उसको दूसरे लफ्जों में कहना चाहें तो आपका रिटर्न जो है वो डबल हो जाएगा. रिटर्न आपका डबल हो सकता है इफ यू आर डूइंग डाइवर्सिफिकेशन. सो वन शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. कैरी आउट सिनेरियो एनालिसिस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग. आपने सिनेरियो एनालिसिस भी करना है और स्ट्रेस टेस्टिंग भी करनी है. दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट that you should do the scenario analysis and
स्ट्रेस टेस्ट। सिनेरियो एनालिसिस से मतलब ये है कि आपने जितना भी लिया हुआ है, सिनेरियो एनालिसिस से मतलब ये है कि आपने जितना भी वर्स्ट केसेस लिए हुए हैं हिस्ट्री में, आप ये देखेंगे कि आप किस तरह से उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि व्हाट कैन हैपन, उसी की बेसिस पे आपने अपनी प्रेडिक्शन करनी है। और स्टूडेंट्स में आपने आपको साथ में ये भी बताया कि कई दफा ऐसा होता है कि किसी चीज का या किसी वेरिएबल का डाटा आपके पास नहीं होता। जब इस तरह का कोई केस हो तो आप उसी किस्म के किसी और कंट्री का मिलता जुलता वेरिएबल उठा के यू कैन गेट दी डाटा, और मैंने आपको एग्जांपल भी कोट की। और स्टूडेंट्स मैंने आपको सिनेरियो टेस्टिंग के हवाले से वार का मेथड एक लेक्चर में बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें वार को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े थे। इफ यू रिमेंबर, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन एंड इवन द वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस हमने किए थे टू डिटरमिन द रिस्क। तो ये सारा जितना भी केस है कि रिस्क लिमिट आइडेंटिफाई करनी है या आपने डिफाइन करना है कि रिस्क लिमिट क्या है, दैट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज स्पेसिफाइड एंड हाईली स्पेसिफाइड टेक्निक्स। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लेसन्स फॉर ऑल यूजर्स ऑफ डेरिवेटिव्स, irrespective of that whether they were financial institutions or they were non-financial institutions. Now there are certain lessons for the non-financial corporations. कुछ lessons ऐसे हैं जो हमने restrict किए थे financial corporations पे, जो मैंने आपसे share किए थे while telling you the story of Barings Bank, that you must remember. अभी जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, these are the lessons for the non-financial corporations. Make sure that you fully understand the trades you are doing. Corporations should never undertake a trade or a trading strategy that they do not fully understand. Corporations कभी भी ऐसा ना करें कि कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ले लें जिसको वो fully understand ना करते हो. This is somewhat obvious point, but it is surprising how often a trader working for a non-financial corporation will, after a big loss, admit to not knowing what was really going on and claim have to be misled by the investment. Robert Citron, the treasurer of the Orange country, did this. So did the traders working for Hammersmith and Fulham, who is, in spite of their huge positions, were surprisingly uninformed about how the swaps and how the interest rate derivatives they really traded really worked. उनको ये भी नहीं पता था कि इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और जो उन्होंने स्वैप्स और अदर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स जो लिए हुए हैं वो किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं. लाइक दे डिड नॉट इवन नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दोज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. If a senior manager in the corporation does not understand a trade proposed by a subordinate, the trade should not be approved. अगर देखें, अगर सुपीरियर या अगर आपके बॉसेस को समझ आती है तो ओनली देन that particular trade should be activated या that particular trade should be taken. क्योंकि अगर आपके बॉस को या अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही तो आपके सबऑर्डिनेट्स को किस तरह से समझ आएगी कि हाउ इट इज अंडरटेकिंग. गेटिंग माय पॉइंट. देखिए ना, कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा सिनेरियो है जो या इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की एग्जांपल ले लें या स्वैप्स की एग्जांपल ले लें. आपको पता ही नहीं है कि लाइबोर क्या है, आपको पता ही नहीं है कि प्लेन वनीला स्वैप्स क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं है स्वैप्शंस क्या हैं, आपको पता ही नहीं है ऑप्शंस क्या हैं, आपको पता ही नहीं है कि कॉल प्राइस क्या है. तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से करेंगे. सिंस यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर्स, आप हैं मैनेजर, ठीक है ना, आपकी नॉलेज में ये जरूर होना चाहिए कि हाउ दे आर बीइंग ट्रेडेड and how they are extracting the profits out of that. You must be aware about that. उसके बगैर बहुत मुश्किल है, ठीक है ना. So make sure you fully understand the trades you are doing. आपको completely समझ आ रहा हो कि how you are generating profits and how the losses can be incurred out of that. So senior management को पता होना चाहिए. A simple rule of thumb is that if a trade and a rationale for entering into it are so complicated that they cannot understood by a manager, it is almost certainly inappropriate for the corporation. तो अगर जो है वो सबऑर्डिनेट्स को समझ नहीं आ रहा, अगर मैनेजर्स को समझ नहीं आ रहा, तो it is going to be impractical that we are going to launch such kind of strategies for our corporations because they are going to be ultimate disaster in that case. The trades undertaken by Procter and Gamble and Gibson Greetings would have been voted using this criteria. One way of ensuring that you fully understand a financial instrument is to value it. If a corporation does not have the in-house capability to value an instrument, it should not trade it. अगर आपके पास वैल्यूएशन टेक्निक्स नहीं है या आपको नहीं पता कि आपने उसको किस तरह से वैल्यू करना है, तो इट इज बेटर कि आप उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को अपने
कॉर्पोरेशन में लॉन्च ही ना करें, आप उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस ही ना करें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। मेक श्योर अ हेजर डज नॉट बिकम अ स्पेकुलेटर, इस बात का यकीन कर लें कि हेजर जो है वो स्पेकुलेटर ना बन जाए। कैसे? वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट फैक्ट्स ऑफ लाइफ इज दैट हेजिंग इज रिलेटिवली डल वेयर एज स्पेकुलेशन इज एक्साइटिंग। देखे ना, स्पेकुलेशन में तो ये होता है ना कि प्राइस चेंजेस से आप उसी वक्त एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, एंड यू मेक योर डिसीजंस वेरी वायबल, आप अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं, एक्साइटमेंट उसमें ज्यादा है। वेयर एज हेजिंग इज डल, हेजिंग से मतलब ये है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, आपने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया, आपने अपने आप को लॉक इन कर लिया। तो हेजिंग जो है वो थोड़ी डल लग रही है, स्पेकुलेशन इज क्वाइट एक्साइटिंग इन दैट व्हेन अ कंपनी हायर्स अ trader to manage foreign exchange, commodity price or the interest rate risk, there is a danger that following might happen. At first, the trader does the job diligently and earns the confidence of the top management. He or she assesses the company's exposure and hedge them. As time goes up, the trader becomes convinced that he or she can outguess the market. जब आप hedge करना शुरू करते हैं तो शुरू में तो आपने अपने जो टॉप मैनेजमेंट है उसका भी आपने ले लिया, कॉन्फिडेंस ले लिया, एंड इवेंचुअली आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंट से मतलब ये कि होते होते आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट से मतलब ये कि आप ये फिर समझते हैं कि नहीं अब तो मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को गाड़ी चलानी आती है, ड्राइव करना आता है, आप ड्राइव करते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपने हमेशा केयरफुल रहना, क्योंकि जब भी आप रोड पे निकलते हैं वो एक फर्स्ट टाइम ही है। मतलब सिचुएशन तो एवरी टाइम इज गोइंग टू बी चेंज्ड, लेकिन करते करते यू बिकम सो वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप समझते हैं कि नहीं अब तो मैं ये बड़े आराम से कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो समटाइम्स इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस से मतलब ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का दैट यू कैन आउट गेस द मार्केट, यू कैन नेवर आउट गेस द मार्केट, आप मार्केट को आउट गेस नहीं कर सकते। As the time goes by, the trader becomes convinced that he or she can outguess the market. Slowly, the trader becomes a speculator. At first, things go well, but then a loss is made. जैसे निकलेसन ने भी यही किया था कि शुरू में वो समझ रहा था कि ये जो लॉस जनरेट हुआ है वो उसको कवर अप कर लेगा बाय टेकिंग सम मोर बिग बेट्स, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। So, as mentioned earlier, clear limits to the risk that can be taken should be set by the senior management. इसलिए clear limits set होनी चाहिए by the senior management. Controls should be put in place to ensure that limits are obeyed. The trading strategy for the corporation should start with an analysis of the risks facing the corporation in foreign exchange, interest rate, commodity markets, and so on. A decision should be taken on how the risks are to be reduced to acceptable level. It is clear sign that something is wrong within corporation if the trading strategy is not derived in a very direct way from the company's exposure. Be cautious about making the treasury department a profit center. अच्छा, इस बात से भी you should be aware कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका ये impression जाए कि जो आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट है दैट इज एक्टिंग लाइक अ प्रॉफिट सेंटर। कैसे? इन द लास्ट 20 years देयर हैज बीन अ टेंडेंसी टू मेक द ट्रेजरी डिपार्टमेंट विद इन अ कॉर्पोरेशन एज अ प्रॉफिट सेंटर। दिस अपीयर टू हैव मच टू रिकमेंडेड। द ट्रेजरर इज मोटिवेटेड टू रिड्यूस फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड मैनेज रिस्क्स एज प्रॉफिटेबली एज पॉसिबल। द प्रॉब्लम इज दैट द पोटेंशियल फॉर द ट्रेजरर टू मेक प्रॉफिट इज लिमिटेड। अच्छा, ट्रेजरर की भी ये मजबूरी है कि कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, उसकी एक लिमिट्स हैं, ठीक है ना। व्हेन रेजिंग फंड्स एंड इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश, द ट्रेजरर इज फेसिंग एन एफिशिएंट मार्केट। जब उसने फंड रेज करना है या सरप्लस कैश को इन्वेस्ट करना है, द ट्रेजरर इज फेसिंग एन एफिशिएंट मार्केट। The treasurer can usually improve the bottom line only by taking additional risk. The company's hedging programs gives the treasurer some scope for making shrewd decisions that increase profits. But it should be remembered that the goal of a hedging program is to reduce risk, not to increase expected profits. But it should be remembered that the goal of a hedging program is to reduce risk, not to increase the expected profits. तो goal जो है वो hedging program का वो ये होना चाहिए कि it is going to reduce risk, not to increase the expected profits. As pointed out in the decisions to hedge will lead to a worse outcome than the decisions not to hedge
रफली 50% ऑफ द टाइम। और कई दफा ये होता है कि हेजिंग करना ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए आपको सिखाया गया कि आपने व्हेन टू हेज, आपने हेज रेशो कैलकुलेट करनी है, कितना हेज करना है और क्या हेज करना भी है या नहीं करना, जिसमें मैंने आपको एक लेक्चर के दौरान हेज वर्सेस नो हेज डिसीजंस पढ़ाए थे और मैंने आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी सिखाई थी कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हेजिंग, द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग, क्या हमें हेज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि करना चाहिए तो कितना करना चाहिए। उस पर्पस के लिए आपको मैंने हेज रेशियोज कैलकुलेट करनी सिखाई है कि कितनी पोजीशंस आपने लेनी है और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं। सो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, दैट इज नॉट मेरली ऑन गैसेज या हंचेस के ऊपर बेस नहीं कर रहा, बल्कि ये सब कुछ कैलकुलेशन के ऊपर बेस कर रहा है। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट लेसन्स। नाउ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम द नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगी नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की कहानियां छोटी छोटी। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू so that you can enjoy. These are all the live examples. Big losses by non-financial organizations. Allied Lyons नाम है कंपनी का। So Allied Lyons, the treasury department of this drinks and food company lost 150 million in 1991 selling call options on US dollar sterling exchange rate. Then Gibson Greeting the treasury department of this greeting cards manufacturers Gibson Greeting का केस, they later sued Bankers Trust and settled out of court. अच्छा, हुआ ये था कि
Treasury Department of Gibson greeting card manufacturer lost about 20 millions in 1994 trading highly exotic interest rate derivative contracts. जो interest rate derivative contracts हैं उनको ट्रेड करते हुए उनको 20 मिलियन का नुकसान हुआ with Bankers Trust. They later sued Bankers Trust and settled out of court. बाद में उन्होंने उनको sue कर दिया and they settled out of court. Okay. Next is Hammersmith and Fulham. Interesting stories हैं. Hammersmith and Fulham. The British local authority British local authority lost about 600 million on sterling interest rate swaps. ज़्यादातर आप देखें जो स्वैप्स यूज़ कर रहे थे, ये जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स यूज़ कर रहे थे उनको ज़्यादा नुकसान हुआ जो नॉन फाइनेंशियल में. ऑन स्टर्लिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड ऑप्शंस in 1988. All of its contracts were later declared null and void by the British court. Declared null and void by the British court. Much to the annoyance of the banks on the other side of the transaction. So Hammersmith and Fulham lost about 600 million on sterling interest rate swaps and options in 1988. All of its contracts were later declared null and void by the British court, much to the annoyance to the banks on the other side of the transaction. यानी जितने भी इन्होंने swaps और options में contracts किए थे वो सारे void थे. They were declared null and void by the British courts. और जो दूसरी साइड के जो काउंटर पार्टीज थी, आप ये सोच लें कि उनका ये सुन के क्या हाल हुआ होगा कि जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, दे वर ऑल नल एंड दे वर ऑल डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड. उसके अलावा वी हैव सम मोर एग्जांपल्स. अनदर स्लाइड. ऑरेंज काउंटी. ऑरेंज काउंटी का बहुत दफा जिक्र किया आपसे. The activities of treasurers. Robert Citron, led to this California. Municipality. He has been lucky enough, मैंने आपसे इससे पहले इसका जिक्र किया था कि he has been lucky enough to generate huge profits for number of years. लेकिन 1994 में इसको इतना huge loss हुआ कि जो पिछले सारे सालों का जो प्रॉफिट्स थे ना वो बराबर हो गए. समझ आ रही ना बात. तो ऐसी गेम नहीं खेलनी चाहिए, ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए. सो म्यूनिसिपैलिटी लूजिंग अबाउट 2 बिलियन
क्योंकि लक जो है ना वो हमेशा काम नहीं आती। In 1994, the trader was using derivatives to speculate that interest rate would not rise. उन्होंने ये यकीन किया था कि या ये स्पेकुलेट किया था कि इंटरेस्ट रेट विल नॉट राइज, हालांकि ऐसा नहीं हो सका, इंटरेस्ट रेट दोबारा इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से इनको ह्यूज लॉसेस हुए। देन इज प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, आप देख लें। Procter and Gamble, the treasury department of this large US company lost $90 million in 1994। इसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया था कि similarly they were expecting the rise in the interest rate, जो कि नहीं हो सका। 90 million in 1994, trading highly exotic interest rates, trading highly exotic interest rate derivatives contracts with bank trust। They later sued Banker Trust and settled out of court. Similarly, Shell, a huge petroleum company, oil and gas, a single employee। आप ये देखें स्टूडेंट, जितने भी ये लॉसेस हुए हैं, जितने भी डिजास्टर्स हुए हैं, उसके पीछे किसी एक एम्प्लॉय का हाथ था या किसी एक सिंगल पर्सन का हाथ था, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बैंकरप्ट हुई है। A single employee working in Japanese subsidiary, working in the of this company lost $1 billion in unauthorized trading of currency futures। So a single employee working in the Japanese subsidiary of the company lost $1 billion in unauthorized trading of the currency futures। करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में वो डील कर रहा था जो कि अनऑथराइज्ड थे, जिसकी वजह से ही लॉस्ट $1 बिलियन। ठीक है। सुमिटोमो, ये भी एक जापानीज है कॉर्पोरेशन। अ सिंगल ट्रेडर working for the Japanese company lost about $2 billion in the copper futures and option markets
in 1990s. So students, these were all the live and real examples of those traders who have basically given the huge losses to the corporations where they were working. So students, these are all the lessons that to be remembered. To sum it up, the whole course, the summary of this chapter and rest of all the other lessons, the huge losses experienced from the use of derivatives have made many traders very wary. Since these spate of mishaps in 1994 and 95, some non-financial corporations have announced plans to reduce or even eliminate their use of derivatives. मतलब उस बात से इतने खफा हो गए या इस बात से इतने डर गए हैं कि they have eliminated the use of derivatives. This is unfortunate because derivatives provide traders with very efficient ways to manage risk. हालांकि derivatives का जो usage है वो बहुत effective management, risk management strategy हो सकता है. The stories behind the losses emphasize the point that derivatives can be used for either hedging or speculation. That is, they can be used either to reduce risk or to take risk. आप इसको risk लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको risk को minimize या reduce करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Most losses occurred because derivatives are used inappropriately. Employees who had an implicit or explicit mandate to hedge their company's risk decided instead to speculate. The key lessons to be learned from the losses is the importance of the internal controls. Senior management with a company should issue a clear and unambiguous policy statement about how derivatives are to be used and the extent to which it is permissible for employees to take positions on movements in the market variables. Risk limits को define करना बहुत important है. Management should then institute controls to ensure that policy is carried out, and they should keep on monitoring that whether the policy is working at its best or not. It is the recipe for disaster to give individuals authority to trade derivatives without a close monitoring of all the risks which are being undertaken. So this is a lesson कि आप derivative के use से पहले उन सबको warn करें कि these are the risks that should be undertaken seriously before you act on those. So with this students, we are going to finish this course. Hope you have enjoyed it and fully understood what I have delivered to you in all the previous lectures and especially in this lecture जो कि हमारा पूरा crux था या पूरा conclusion का lecture था. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.